हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीएल शर्मा मैथ सर और डिस्कस कर रहा हूँ चैप्टर 1 रियल नंबर ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी से। और ये कंटिन्यूएशन पार्ट है अप टू क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.1 वी ऑलरेडी हैव डन इन फर्स्ट पार्ट। इन दिस पार्ट द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1.1 ऑफ चैप्टर 1 दैट इज रियल नंबर। मैं बीएल शर्मा मैथ सर। कीप वॉचिंग। This is third part of question number 3. Find SCF and LCM of 8, 9 and 25 by prime factorization method. पहले इनके prime factors करते हैं। हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, आप भी इसका कर पाइएगा। देखिए, पहले तो 8 का prime factors करते हैं। Write 8 divisible by 2, then 2 4s are 8, 4 again divisible by 2, so 2 2s are 4. These all are prime numbers, and when you divide 2 by 2, that is 1. So हमें prime factors में 2 into 2 into 2, 2 power 3. Now we take 9. So write 9 here. 9 is divisible by 3. 3 3 is a 9. 3 is again divisible by 3 and it is 1. So 3 and 3, these two are prime numbers. 1 is not a prime number. So हमें केवल prime factors चाहिए. And for 25, write here 25. 25 is divisible by 5. That is 5. 5 1 is 5. This is 1. So factors, prime factors of 25 are 5 and 5. अब इनको exponential form में लिख दीजिएगा. 8 can be written as 2 power 3 into 1. 1 is not required to write. 1 को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये प्राइम फैक्टर नहीं है। मैं इसको चेंज कर देता हूं। So 8 can be written as 2 power 3. 2 is a prime number. हमें प्राइम फैक्टर से लिखना है, ये 1 नहीं लिखना है because 1 is not a prime number. 9 3 पावर 2, 25 5 पावर 2. अब देखिए एचसीएफ के लिए कॉमन फैक्टर्स का लोवेस्ट पावर लेना है और एलसीएम के लिए सारे ही फैक्टर्स का हाईएस्ट पावर लेना है। देखिए, सो आप देखेंगे यहां पे कि एचसीएफ ऑफ कॉमन फैक्टर इज 1, क्योंकि कॉमन फैक्टर है ही नहीं। देखिए, ये फैक्टर 2 है, ये 3 है और ये 5 है। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कोई भी कॉमन नहीं होता तो हम कहेंगे कि इसमें 1 कॉमन है। सो एचसीएफ ऑफ 8 9 एंड 25 इज 1 आंसर। एलसीएम के लिए हमें हाईएस्ट पावर लेना पड़ेगा। So HCF is 1. LCM के लिए you have to take the maximum power of the prime numbers. So देखिए, 2 highest power is 3, 3 highest power is 2, 5 highest power is 5. So multiply all these. So that will be 1800. So SCF is 1 and LCM is 1800, and this is answer of this question. That's all for this question number 3, part 3. मैं BL Sharma, Maths. Given that SCF of 306 and 657 is 9, if दे रखा है कि SCF दो नंबर्स का 9 है, दो नंबर, two numbers are 306 and 657, find LCM. इन्हीं दो नंबर का एलसीएम फाइंड आउट करिए। देखिए, हमारे पास एक फॉर्मूला है। We know that SCF and LCM and SCF, product of LCM and SCF two numbers is equal to product of the two numbers. ये टू नंबर्स हमारे पास है, एक 306 है और एक 657 है। So LCM will be the product of SCF is, we have to calculate LCM. SCF is 9, it is given. First number is 306 and second number is 657. LCM के लिए 9 से डिवाइड करिए। So for LCM, multiply 306 657 divided by 9, simplify करिए और यही आपका आंसर होगा। So 22338 is the answer of this question. Means LCM of the two numbers 306 and 657 is 22,338. That's all for this question.
check whether 6 power n can end with the digit 0 for any natural number n। 6 की क्या कोई पावर नेचुरल नंबर है, क्या इसका लास्ट डिजिट डिजिट एट यूनिट प्लेस कभी 0 आएगा, ये हमें चेक करना है। हमने पहले डिस्कस किया था कि लास्ट डिजिट 0 होने के लिए जरूरी है कि वो इसके इसके 10 से डिविजिबल हो। 10 से डिविजिबल होने के लिए जरूरी है कि वो उसके जो प्राइम फैक्टर्स है 2 और 5 दोनों। तो क्या इसमें है, देखिए, वी नो दैट 6 पावर n in place of 6 it is 2 into 3 whole power n। इंडिविजुअली वी कैन राइट 2 पावर n into 3 पावर n। देखिए यहाँ पे एक 6 का एक फैक्टर 2 है और एक फैक्टर 3 है। इसका फैक्टर प्राइम फैक्टर 5 नहीं है। If the number 6n for any n were to for any natural number n were to end with the digit 0, then it would be divisible both by 2 and 5. But here we observe that 2 is a factor but 5 is not a factor। यहाँ पे 2 तो फैक्टर है प्राइम फैक्टर, लेकिन 5 फैक्टर नहीं है, प्राइम फैक्टर नहीं है, इसलिए क्या कहेंगे हम, but prime factorization of 6 does not contain 5 as a factor। that is why 5 इसका फैक्टर नहीं है। इसका मीनिंग ये हुआ कि 6 पावर n where n is any natural number will never end with the digit 0। तो आप इसको ये स्टेटमेंट आपको लिख देना चाहिए, एंड दैट्स ऑल फॉर दी दिस क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, आने की पॉसिबिलिटी भी है। आपको चाहिए कि आप इनको अपनी नोटबुक में बार बार प्रैक्टिस, राइटिंग की प्रैक्टिस आप करें। देखिए अभी मैं आपको ये कंसेप्ट प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर का क्या है मैं आपको बताता हूं। मैनी टाइम्स यू आर कंफ्यूज्ड with prime numbers and composite number because it was I think in 6th or 7th standard। तो आप most of you भूल चुके हो उसको कि इसका क्या कंसेप्ट है। इसके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आते हैं, कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, लेकिन उस वक्त हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता कि ये प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। आई एम डिस्कसिंग डीपली with you the concept of prime numbers and composite numbers, taking some suitable examples। तो पहले तो देखिए मैं कुछ ये नेचुरल नंबर्स लिख रहा हूं यहाँ पे, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक मैंने नेचुरल नंबर लिख दिए हैं। अब ये 1 किससे डिविजिबल है, दिस इज डिविजिबल बाय 1। 2 इज डिविजिबल बाय 1 एंड 2, 1 और 2 दोनों से ही डिविजिबल है। तो हम ऐसे कहते हैं कि 1 इज द फैक्टर ऑफ 1, 1 एंड 2 बोथ आर फैक्टर्स ऑफ 2। 4 किससे डिविजिबल है, 1 2 और 4 से। 3 डिविजिबल है 1 और 3 से। 5 डिविजिबल है 1 और 5 से। 6 डिविजिबल है 1 2 3 और 6 से। 7 डिविजिबल है 1 और 7 से। 8 डिविजिबल है 1 2 4 और 8 से, और 1 3 और 9 से। आप यहाँ पे देखेंगे कि एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। हर नंबर खुद से डिवाइड होता है। देखिए 2 यहाँ पे 2 है, 3 भी है, अगर ये 4 है तो 4 है, 5 डिविजिबल बाय 5, 6 डिविजिबल बाय 6, नंबर 1। एंड एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1। प्रत्येक नंबर 1 से भी डिविजिबल होता है, और 1 के अलावा कोई और नंबर है तो खुद से भी डिविजिबल होता है। ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो कई बार हम, तो इसका जो फैक्टर्स होंगे, देखिए इसका फैक्टर 1 ही है, 2 के फैक्टर 1 एंड 2 दोनों है, 1 एंड 3 है, 1 2 एंड 4 है, 1 5 है, 1 2 3 6 है, 1 7 है, 1 2 4 8 है, और 1 3 9 है। जिस जिससे डिविजिबल होता है वो उसके फैक्टर्स होते हैं, राइट। अब इन फैक्टर्स को काउंट करिए। देखिए कितना फैक्टर है 1 का, केवल 1। 2 के 2 फैक्टर्स हैं, 3 के भी 2 फैक्टर्स हैं, 4 के 3 फैक्टर्स हैं, 5 के 2 फैक्टर्स हैं, 6 के 4 फैक्टर्स हैं, 7 के 2 फैक्टर्स हैं, 8 के 4 फैक्टर्स हैं, और 9 के 3 फैक्टर्स हैं।
इन फैक्टर से मतलब क्या हुआ? अब मैं आपसे बताना चाहता हूं वो नेचुरल नंबर जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स है। नेचुरल नंबर हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर्स इज ए प्राइम नंबर। देखिए, इसके दो फैक्टर्स हैं तो टू प्राइम नंबर है। ये भी टू फैक्टर्स है तो थ्री इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर। फाइव के भी दो फैक्टर्स है, दैट इज प्राइम नंबर। सेवन के भी दो फैक्टर्स है, दैट इज प्राइम नंबर। यही प्राइम नंबर है वन से लेके नाइन तक। लेकिन जिससे दो से ज्यादा फैक्टर्स हों वो दैट नंबर इज कंपोजिट नंबर। देखिए, थ्री फैक्टर्स हैं किसके? दीज आर दी फैक्टर्स ऑफ फोर, सो फोर इज ए कंपोजिट नंबर। थ्री से ज्यादा फैक्टर्स, यहां इसके फैक्टर फोर है तो सिक्स इज अ कंपोजिट नंबर। एट के भी फोर फैक्टर मीन्स टू से ज्यादा है, मोर देन टू फैक्टर्स है, सो एट इज ऑल्सो ए कंपोजिट नंबर। नाइन के थ्री फैक्टर्स है, इट इज ऑल्सो ए कंपोजिट नंबर। तो आपने देखा जिसके एग्जैक्टली टू फैक्टर्स हो प्राइम नंबर हुआ, जिसके मोर देन टू फैक्टर्स मीन्स थ्री और मोर फैक्टर्स होंगे कंपोजिट नंबर हुआ। लेकिन वन का टू फैक्टर एग्जैक्टली नहीं है, इसका केवल एक ही फैक्टर्स है, तो ना तो ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन में आता है ना ही ये कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन में आता है। इसलिए हम कहेंगे वन प्राइम भी नहीं है और वन कंपोजिट भी नहीं है। सो वी कैन से वन नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। I think you have got the meaning of the prime number and composite number. Smallest prime number, देखिए smallest prime number है 2, smallest composite number है 4, right? ये दोनों ही इवन नंबर है, लेकिन आप देखेंगे केवल इवन प्राइम तो 2 ही है, इसके बाद जो भी प्राइम नंबर है सारे के सारे ओड है। 3 is odd, 5 is odd, 7 is odd. So only even prime is 2. And you can say the smallest prime number is 2, the smallest composite number is 4. कई बार आ जाता है find the SCF of the smallest prime number and smallest composite number. तो हम उस वक्त बड़े कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या है और प्राइम नंबर क्या है। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू दैट व्हाट आर प्राइम नंबर्स एंड व्हाट आर कंपोजिट नंबर एंड व्हाई। क्यों वन प्राइम नंबर नहीं है? क्योंकि प्राइम नंबर के लिए टू फैक्टर्स होने चाहिए थे एग्जैक्टली, कंपोजिट नंबर के लिए मोर देन टू फैक्टर्स होने चाहिए, वन के फैक्टर केवल एक ही है, दैट इज व्हाई वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। I think this is very much clear to you. Explain why 7 multiplied by 11 multiplied by 13 plus 13 and 7 multiplied by 6 multiplied by 5, 3 to 1 plus 5 are composite number. देखिए, कोई भी नेचुरल नंबर है या तो प्राइम नंबर होता है या वो कंपोजिट नंबर होता है। हमने डिस्कस किया प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होते हैं जिसमें वन भी और द नंबर खुद भी है। वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, और किसी भी नेचुरल नंबर के अगर दो से ज्यादा फैक्टर हैं जिसमें वन इंक्लूड है तो वो नंबर कंपोजिट होता है। यहां पे हम फैक्टराइज करेंगे, ये 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है। 13 इसको सिंप्लीफाई करिए, देखिए 13 आपने कॉमन लिया तो 7 इंटू 11 प्लस 1 और फर्दर दैट इज 13 इंटू 13 इंटू 6। कितने फैक्टर्स हो गए इसके? 1, 2 और 3। 2 से ज्यादा फैक्टर होते ही वो नंबर नेचुरल नंबर कंपोजिट नंबर हो जाता है। दैट इज व्हाई this number is composite number. You can write a natural number having more than 2 factors is a composite number. That is why this number is a composite number. Right? पहला तरीका, आपको जैसे ही दो से ज्यादा फैक्टर्स हो उसको फर्दर फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है। आप लिखिए वहां पे बिकॉज दिस नंबर इज हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। देखिए 6 भी फैक्टराइज हो सकता है लेकिन हम इसको नहीं किया क्योंकि हमें दो से ज्यादा फैक्टर मिल चुके हैं। And for the number means next number this one 5 इसमें कॉमन लीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो नंबर आ गया है वो है 108 प्लस 1 109। 5 एज इट इज, 1 एज इट इज। 1 तो हर किसी का फैक्टर होता है
इसके भी कितने फैक्टर हो गए, 1 2 एंड 3। इसको हमें फर्दर फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी नो एनी नेचुरल नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स मींस एट लीस्ट 2 फैक्टर्स, 3 फैक्टर्स जिसके होंगे वो कंपोजिट नंबर है। इसके 1 2 और 3 फैक्टर्स हुए, दैट इज व्हाई दिस नंबर इज अ कंपोजिट नंबर एंड दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। आप फैक्टराइज करिए, मोर देन 2 फैक्टर्स होते ही कंपोजिट, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स मींस दैट इज प्राइम, एग्जैक्टली 1 फैक्टर दैट इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, क्योंकि अगर 1 लेंगे तो इसका एक ही फैक्टर होगा, सो 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। सिंपल है, लेकिन एग्जाम में आपको लिखना नहीं आता, यू डोंट नो हाउ टू राइट, हमेशा कंफ्यूजन होता है। तो आप लिखने का, राइट करने का आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। Read the question. There is a circular path around a sports field. Sonika takes 18 minutes to drive 1 round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same time and at the same time, same point and same time, and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? Very good, very good question. स्टूडेंट्स, आपको ऐसे क्वेश्चंस में, वर्ड प्रॉब्लम्स में बहुत कंफ्यूजन होता है। वो रीजन ये है कि आपने ऐसे क्वेश्चंस को ढंग से अंडरस्टैंड नहीं किया होता। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन रीड करते ही आपको समझ में नहीं आता कि एक्चुअली एग्जैक्टली एक क्वेश्चन है क्या। इसके लिए मैं कुछ एक एग्जांपल लेता हूं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैंने ऐसे एक एग्जांपल लिया, और वो एग्जांपल है कि ये देखिए एक सर्कुलर फील्ड है। आप यहां से मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूं, और एग्जांपल ये लिया कि मैंने ये दो, कोई भी ये एक आपका मींस कौन है, फर्स्ट में सोनिया यहाँ, और ये दूसरा रवि, ये दोनों 8 बजे स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे इस पोजीशन पे है 8 बजे। अब सोनिया मींस ये जो है वो 18 मिनट्स में पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लेती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोनिया, ये जो है मैं एक बार देख लेता हूँ, सॉरी, ये फर्स्ट इसका है रवि का, ये फर्स्ट रवि है, और ये सोनिया का है। ये देखिए, पहले मैं रवि का लेता हूँ। रवि 8 बजे यहाँ से रवाना हुए, तो ये क्योंकि 12 मिनट में एक राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, रवि यहाँ पे 8:12 पे इसी पोजीशन पे आ जाएगा जिस पोजीशन पे उसने शुरू किया। फिर देखिए, रवि फिर यहां से 8:12 पे रवाना होगा, और 8:12 मिनट के बाद में उसी पोजीशन पे वापस आ जाता है। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। और देखिए, ये अगर फिर एक राउंड लेता है तो ये 8, क्योंकि 12 मिनट बाद, ये 12 मिनट बाद 8:24 पे आने के बाद ये वापस एक राउंड लेकर के, कंप्लीट राउंड लेके 8:36 पे यहां आ जाता है। 3 चक्कर इसने 36 मिनट में लगा चुका है। इसने स्टार्ट किया था 8 बजे, कौन, रवि। एक राउंड कंप्लीट किया 8:12 पे, 8:12 का मतलब यहां वापस आ जाएगा चक्कर से, फिर 8:24 पे वापस आ जाएगा, 8:36 पे वापस यहां पे रवि आ जाएगा, क्योंकि हर 12 मिनट का एक राउंड लेता है। सिमिलरली, क्योंकि सोनिया 18 मिनट का राउंड लेता है, तो अगर 8 बजे सोनिया यहां से रवाना होगी तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन 18 मिनट का लेगी। यानी ये 8:18 पे, मीन्स 8:18 पे ये सोनिया फर्स्ट राउंड लेंगे यहाँ पे, इसी जगह पे। दूसरा देखिए, 8:18 पे राउंड लिया, और यहां से स्टार्ट होने के बाद फिर 18 मिनट के बाद ये इस जगह पे आ जाएंगी, तो सोनिया 8:36 पे इस जगह पे आ जाएंगी। आपने देखा कि ये दोनों ही रवि और सोनिया 8:36 पे इस पॉइंट पे आ चुके हैं, इनिशियल पॉइंट जहां से इन्होंने शुरू किया। क्योंकि ये अगर 12 मिनट के बाद में यहाँ पे है, तो फिर 8:18 के बाद में यहाँ नहीं मिल रहे, ये फिर मिल रहे हैं 8:36 के बाद। फिर फिर मान लीजिए ये जो 8, एक्चुअली हमारा आंसर यही कंप्लीट हो जाता है। हम कहेंगे कि 8:36 में पे दोनों यहाँ पे मिलते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में बाय द वे डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आए, तो इसमें क्या करेंगे कि फिर थर्ड पोजीशन पे अगर वापस यहाँ से रवाना हो गए 8:36 पे, तो 12 मिनट के बाद यहाँ पे वापस आ जाएंगे, और फिर यहाँ पे 9 पे, क्योंकि हर 12 मिनट पे एक चक्कर लगाएगा, और ये 9:12 पे
6 राउंड हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। जबकि ये सोनिया 836 पे, फिर ये 845 पे, और ये 912 पे। यहां पे देखिए 836 पे मिलेंगे फर्स्ट टाइम, फिर अगर ये कंटिन्यू राउंड करते रहे तो ये 912 पे मिलेंगे सेकेंड टाइम। तब तक तब तक रवि 1 2 3 4 5 6 राउंड ले चुका होगा पूरे फील्ड का, जबकि सोनिया 1 2 3 और 4 राउंड ही ले सकते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे? 836 पे मिलेंगे। और आपने देखा होगा 36 क्या है, 18 और 12 का एलसीएम है, राइट? तो इन दोनों का क्या कह किया हमने, इन दोनों का हमने एलसीएम निकाला, किसका, 18 और 12 का। एंड व्हाट इज एलसीएम? एलसीएम इज 36। तो कितनी देर बाद वो मिलेंगे? हम कहेंगे therefore Ravi and Sonia will meet together at the starting point after 36 minute। 36 मिनट के बाद मिलेंगे, और 36 क्या है, 18 और 12 का ये एलसीएम है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको एलसीएम फाइंड आउट करना चाहिए। मोस्ट ऑफ यू आस्क मी कि व्हाट टू फाइंड आउट मींस एचसीएफ और एलसीएम। तो अगर आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लिया तो इजीली यू कैन गिव द आंसर दैट यस आफ्टर 36 मिनट दे विल मीटिंग। एंड व्हाट इज 36? 36 इज द एलसीएम of 18 and 12, and that's all for this question। ये एग्जाम्पल आपको मीन्स मैंने दिया है, ये एग्जाम में आपको ऐसे नहीं लिखना है। एग्जाम में तो केवल आपको जो लिखना है, देखिए यू नीड नॉट राइट दिस इन द एग्जाम, दिस शुड नॉट बी रिटन, यू हैव टू राइट दिस ओनली इन द एग्जाम इफ दिस क्वेश्चन कम्स। वो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए ये मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सेकंड टाइम कब मिलेंगे, तो हम कहेंगे सेकंड टाइम वो मिलेंगे कितने बजे, 912 पे मिलेंगे। ये 36 ऐड करती जाइए, 36 मिनट ऐड करती जाइए, राइट? दैट्स ऑल। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं BL शर्मा, मैथ्स। कीप वॉचिंग, थैंक यू।